Hello my dear students, this is Swati Chawla. I welcome all of you on my YouTube channel and the series of class 11th and 12th Computer Science with Python. As you know, in our previous video, we have discussed the introduction of data representation or 4 types of number system. Plus, we have also discussed how to convert the decimal number system to octal, binary and hexadecimal number system. In this video, we are going to discuss all the remaining conversions, that is octal, hexadecimal and binary to decimal, octal to hexadecimal, hexadecimal to octal, octal to binary, binary to octal, hexadecimal to binary and binary to hexadecimal. बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बस इसमें आपने सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि किससे किस मेथड में कन्वर्ट करेंगे तो which method will be used, right? Last time I told you if your decimal is at left side, so which method you have to use? LCM method. So same technique or how to remember this और इनके क्या concepts हैं, that also we will cover in this video. So I request you to watch the video till end without skipping any part. So now let's start our today's video. But before starting that, if you are new to my channel and not subscribed yet, please subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Now let's start our today's video. So now let's start with our next conversion, that is conversion of octal, hexadecimal and binary number system to decimal. In our previous video, what we have done? We have converted the decimal into binary, octal and hexadecimal, right? In this video, first method that we will start is octal, binary and hexadecimal to इन तीनों को हमें किस में कन्वर्ट करना है? डेसिमल, राइट? इन दिस LCM method was used where decimal was at left side and here multiplication by power method will be used, right? So as you can see, we are having 4 types of number system: binary, octal, hexadecimal and decimal. So now let's start the conversion of octal to decimal, binary to decimal and hexadecimal to decimal. These are the steps to convert binary, octal and hexadecimal to decimal. The very first thing, what you have to do? You have to separate the digits of the given number having base b. Means जो भी आपको given होगा base, चाहे वो binary हो, octal हो या hexadecimal हो, means 2, 8 और 16. You have to separate the digits of that number. Means if it is 1, 2, 3, तो 1 separate कर देंगे, 2 and then 3. Digits को separate करना. After that, multiply each digit of the given number with its increasing power of b from right to left. अभी practically करेंगे with example तो ये concept clear हो जाएगा. Adding all the individual results provides the equivalent decimal number. Right? Now see this. This is binary to decimal conversion. And this number is given in binary form 11011. So the very first step, what you have to do? 11011. We have to separate the digits. Digits are separated now. Next step is multiply each digit of the given number. That means this digit 11011 किससे multiply करना है? With its increasing power of b from right to left. Increasing power of b. b means base 2. So 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3 and then 2 raised to the power 4. इससे हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, राइट? अब उसके बाद मुझे क्या करना है इनको? मीन्स 1 into 2 raised to the power 4 plus 1 into 2 raised to the power 3 plus 0 into 2 raised to the power 2 plus 1 into 2 raised to the power 1 and plus 1 into 2 raised to the power 0. ठीक है, 2 raised to the power 0, rather I can say any number with power 0, the answer will be 1, right? So at the end you have to add all these digits, calculate करके, तो ये आपका final answer आ जाएगा, right? Now let's solve this question. Binary to decimal conversion है, number given है 110100. Let's write it here. 1 1 0 1 0 0, right?
अब सी दिस, किसमें गिवन है? बाइनरी में. दैट मीन्स 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, 2 raised to the power 4 and 2 raised to the power 5. राइट? अब इसको हमें क्या करना है? सिंपल मल्टीप्लाई एंड देन सॉल्व. तो आई एम राइटिंग इट हियर 1 into 2 raised to the power 5 plus 1 into 2 raised to the power 4 plus 0 into 2 raised to the power 3 plus 1 into 2 raised to the power 2 plus 0 into 2 raised to the power 1 plus 0 into 2 raised to the power 0. Right? 2 raised to the power 5 will be, करोगे 2 को 5 times multiply तो आंसर will be 32. Right? Plus 2 raised to the power 4 will be 16 plus 0 plus 4 plus 2 raised to the power 1, that means 2 into 0 0, 2 raised to the power 0 1 into 0 0. अब सिर्फ आपने इनको क्या करना है? सिंपल ऐड करना है. राइट? 32 plus 16 48, 48 plus 4 that means 52. Or this we have converted into decimal, so you have to write base 10 and this is your final answer. Right? Now see this next question कि अगर आपको जो नंबर गिवन है that is in the fractional form, means पॉइंट की फॉर्म में गिवन है, डेसिमल की फॉर्म में. तो यहाँ पर ध्यान से देखो 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2. जब हम डेसिमल के राइट साइड पर करेंगे तो we will solve 2 raised to the power -1, 2 raised to the power -2, 2 raised to the power -3 and 2 raised to the power -4. Right? Let me write it here now. 1 into 2 raised to the power 2 plus 0 into 2 raised to the power 1 plus 0 into 2 raised to the power 0. Right? Plus 1 into 2 raised to the power -1 plus 1 into 2 raised to the power -2 plus 0 into 2 raised to the power -3 plus 1 into 2 raised to the power -4. And this 2 raised to the power 2, 4 plus 0 plus 0 plus, अब जो 2 raised to the power -1 है इसको सॉल्व करने के लिए 1 into 1/2, so I am directly writing it 1/2 plus 1/4 plus this term will be 0 plus 1/2 raised to the power 4, that means 16. राइट? तो इसमें जो जीरोस है इसको हटा दें तो 1 plus 1/2 plus 1/4 plus 1/16. अब इसमें हम एलसीएम लेंगे 16. मैं इसको इसीलिए डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर रही ताकि आपको जितने सारे स्टेप्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाए. 16 विल बी द एलसीएम. तो 16 4 जा 64 plus 8 plus 4 plus 1. Right? So you have to add all these numbers. 64 plus 8, 72. 72 plus 4, 76 plus 1, that means 77. Now you have to divide this number 77 with 16. So its answer is 4.8125. So I am writing it here directly. 4.8125 and with base किस में कन्वर्ट करना है बच्चों? डेसिमल. तो बेस क्या लिखेंगे? 10. So this will be the final answer for this question. अगर लेट सपोज यहाँ पर 2 की जगह क्या होता? 8 और डिजिट्स यहाँ पर कुछ और होती 0 to 7 तो लिखते 8 raised to the power -1, 8 raised to the power -2, इस तरीके से. Now see this octal to decimal conversion. So the number which is given is 372. This is octal number system with base 8 and you have to convert this number into decimal number system, right? Earlier we have done this binary to decimal. तो हमने यहाँ पर पावर्स किसकी की है बच्चे? 2 की. अब किस में कन्वर्ट करना है? octal to hexadecimal. That means 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1 and 8 raised to the power 2. Now you just simply have to multiply 3 into 8 raised to the power 2
plus 7 into 8 raised to the power 1 plus 2 into 8 raised to the power 0, right? Then 8 raised to the power 2 will be 64 and then 64 into 3. So you have to multiply this. 64 into 3 will be 192 plus 8 into 7, 56 plus 8 raised to the power 0 will be 1. 1 into 2 will be 2. So you have to add all these values. 192 plus 56 or plus 2, I am directly writing it here, 58. 8 plus 2, 10, 5 and the answer is 250, right? और जो भी आपका फाइनल आंसर होगा तो then you have to write this base also. In which base you have converted this into decimal? So here you have to write 10, right? Now say this in the decimal में आपको ये given है बच्चों, ठीक है? अब इसमें क्या given है? 24.6. So that means here I am writing 8 raised to the power 0, 8 raised to the power 1 और 6 को I am writing 8 raised to the power minus 1, right? So equals to number हम लिख लेते हैं 24.6. 8 you have to convert it into decimal. So now 2 into 8 raised to the power 1 plus 4 into 8 raised to the power 0 plus 6 into 8 raised to the power minus 1, right? So 8 into 2, 16 plus 8 raised to the power 0 will be 1. 1 into 4, 4 plus 6 into 8 raised to the power minus 1. तो उसमें तो हमने क्या कर दिया था बच्चों, यहाँ पर 2 raised to the power minus 1 will be 1 by 2. 2 raised to the power minus 2 will be 1 by 4. और यहाँ पर 1 डिजिट से तो ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो इसको हम can I write 6 by 8, right? 6 into 8 raised to the power minus 1 will be 1 by 8. So now you have to take the LCM here. 16 into 8. अब इसके लिए आपको 16 की टेबल आनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पर लिखी थी अभी साइड में. 16 into 8 will be 128, right? So here I am writing 128 plus 32 and then plus 6. So you have to add all these values. और किस किस को ऐड करोगे? 128 plus 32 plus 6. So it will be 166 and then you have to divide 166 by 8. 166 divide by 8 और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो फाइनल आंसर विल बी 20.75 and base 10. That means you have converted this number into decimal number system, right? Now next is hexadecimal to decimal. करना अभी भी मुझे किस में है बच्चों? डेसिमल में, राइट? किसको करना है? हेक्साडेसिमल को. और नंबर क्या गिवन है आपको? 356 with base 16. And you have to convert this number into decimal, right? So what you have to do? 3 into 16 raised to the power 012. That means 2 plus 5 into 16 raised to the power 1 plus 6 into 16 raised to the power 0. So 16 raised to the power 2 will be बच्चों 256 and 256 into 3 will be 768. So I am writing it here 768 plus 16 into 5 that will be 80 plus 16 raised to the power 0 will be 1. 1 into 6 will be 6. So you have to add all these values. 768 plus 80 plus 6. So the answer will be 854 with base 10. Right? I hope आपको concept clear हो रही है. Now next is 2AF. अब हेक्साडेसिमल है तो A to F भी obviously आ सकते हैं, right? So number मुझे क्या given है? 2AF with base 16 and then you have to convert it into decimal. So what you have to write it here? 2 into 16 raised to the power 2 plus A into 16 raised to the power 1 plus F into 16 raised to the power 2. Right? अब इसको स्टार्टिंग में ही फर्स्ट स्टेप में A को 10 नहीं करना. उससे क्या होगा कि जब हमने कन्वर्जन्स पढ़े थे हमने क्या डिजिट्स को सेपरेट करना है. ये मुझे डिजिट्स गिवन है
और सेकेंड थिंग जो कुछ स्टूडेंट्स हमारे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं, इस 2 को 2 लिख देंगे, a को 10 लिख देंगे, f को 15 लिख देंगे, तो वो क्या कन्वर्ट कर देंगे 16 की पावर 0 1 2 3 4। नो, ये काम आपने नहीं करना है, राइट। सो अब इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे 16 रेज टू द पावर 2, दैट मीन्स 256, and then you have to multiply 256 with 2, that is 512 plus a की वैल्यू 10, 10 into 16 160 plus f 15, और अब मुझे किसको मल्टीप्लाई करना है बच्चों, 15 को 256 से। व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 16? 256. So I'm multiplying it 256 with 15, so the answer will be 3840. Here I have to write बच्चों by mistake यहाँ पर क्या लिख दिया 2, here it will be 0, right? So यहाँ पर क्या लिख देंगे 0, because f यहाँ पर हमने क्या लिखना है 16 raised to the power 0. तो 16 raised to the power 0 will be 1 and 1 into 15, that means 15. Now you have to add all these values, 512, 160 and then 15. 5 plus 2 7, 6 or 2 8 and then 5 or 1 6. So the correct answer will be 687 and then base 10, because we have converted it into the decimal number system, right? Now next is octal to binary conversion. Again a very easy and very simple method, right? The conversion from octal to binary is performed by converting each octal digits to its 3-bit equivalent. अब इसके लिए हमें ये टेबल ध्यान रखनी है, और ये टेबल भी हमने लर्न नहीं करनी, ठीक है। इसको ध्यान से देखो हमने किस तरीके से ये टेबल बनती है। एक बहुत ही प्यारा सा रूल होता है बच्चों हमारा, उस रूल का नाम होता है 4 to 1 कह लो या 8 4 to 1, ठीक है। अब ये 4 to 1 कहाँ से आया, 2 raised to the power 0, 2 raised to the power 1, 2 raised to the power 2, 2 raised to the power 3, और आगे एक्सटेंड करना तो it will be 16 8 4 2 1, right? 2 raised to the power 0 will be 1, 2 raised to the power 1 will be 2, 2 raised to the power 2 will be 4 and 2 raised to the power 3 will be 8. तो इस रूल का नाम क्या होता है बच्चों, 8421 हमारा हेक्साडेसिमल में यूज होगा, 421 हमारा ऑक्टल में यूज होगा, राइट। अब बहुत ही प्यारा सा रूल है, ये आपके सारे क्वेश्चंस को एकदम आसान कर देगा। अब ये वैल्यूज देखो किस तरीके से आती हैं। अब ऑक्टल की अगर हम बात करें, ऑक्टल मीन्स 8, इन 3 डिजिट्स का सम करके जरा मुझे बताओ क्या आंसर आ रहा है। 4 plus 2 plus 1 7, और 0 to 7 लिखेंगे तो टोटल कितने डिजिट्स हो गई 8। तो इसीलिए ऑक्टल के लिए हम कौन सा रूल लेंगे, 4 to 1। अब 4 to 1 के रूल में आपने क्या करना है बच्चों, वैल्यूज लिखनी है। अब वैल्यूज कैसे लिखनी है ध्यान से देखना। 0 की बाइनरी वैल्यू लिखने के लिए यहाँ पर 0 कहीं नहीं है पर 4 to 1 में, तो दैट मीन्स द बाइनरी वैल्यू ऑफ 0 विल बी 0 0 0। अब जब मुझे 1 की बाइनरी वैल्यू लिखनी है तो व्हाट यू हैव टू चेक कि जो आपको 4 to 1 गिवन है, जहां पर 1 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है, इसकी प्लेस में 1 लिख दो, बाकी प्लेसेस पर 0, राइट। 2 के लिए 2 मेरे पास यहाँ पर आ रहा है, इसकी प्लेस पर नीचे क्या लिख दिया 1, बाकी प्लेसेस पर 0। तो ये मेरी 2 की बाइनरी वैल्यू बन गई बच्चों, ठीक है। 3 की बाइनरी वैल्यू के लिए अब 3 तो मेरे पास नहीं आ रहा, अब आपने क्या करना है, किन डिजिट्स को ऐड करके वो नंबर बनेगा। 2 plus 1 will be 3, तो 2 और 1 के नीचे तो व्हाट आई विल राइट 1, जिनको प्लस करके वो नंबर आ रहा है, देन हियर 0। 4 के लिए बच्चों 4 यहाँ गिवन है, इसके नीचे 1 लिख दोगे, 0 0। 5, अब 5 डायरेक्ट डिजिट नहीं गिवन है, 4 plus 1 मेरा क्या हो जाएगा 5, तो 5 की वैल्यू के लिए 4 और 1 के नीचे प्लेस पर क्या लिख देंगे 1, बाकी प्लेस पर 0। 6 के लिए बच्चों 4 plus 2 6 होता है, तो 4 और 2 के नीचे 1, बाकी प्लेस पर 0। लास्ट वन है 7, इन तीनों डिजिट्स का ही सम मेरे पास क्या आ रहा है 7, तो हमने क्या लिख दिया 1 1 1, राइट। सो आई होप ये आपको टेबल पता लगी है मैं किस तरीके से इसको बनाना है, ठीक है। इसको क्रैम नहीं करना है 4 0 4 1 2 0 2 1, नो, आपको डायरेक्ट वैल्यू आनी चाहिए कि अगर आपको मीन्स आपसे 5 की डायरेक्ट वैल्यू पूछ ली है बाइनरी, तो आप यूं नहीं रखो माइंड में 4 0 4 1 2 0 2 1, नो,
4 to 1 रूल लगाओ और डायरेक्ट उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करो, राइट। तो इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यही टेबल आपकी बनी हुई है, ठीक है। सेम हम इम्प्लीमेंट करेंगे हेक्साडेसिमल में, जब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, 8 to 1, राइट। नाउ सी दिस ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन, 472। अब ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन के लिए अगर आपको मेथड बताऊं तो कन्वर्जन फ्रॉम ऑक्टल टू बाइनरी इज परफॉर्म्ड बाय कन्वर्टिंग ईच ऑक्टल डिजिट टू इट्स 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट। अब 3-bit बाइनरी इक्विवेलेंट क्यों बोला, 4 to 1 का रूल लगाना, 84 to 1 नहीं। जब भी बात ऑक्टल की होगी 4 to 1, फॉर हेक्साडेसिमल 84 to 1, राइट। नाउ सी दिस, अब 4 है, यहां पर हम अपना रूल लिख लेते हैं बच्चों, 4, 2 and 1, राइट। अब आपने इन डिजिट्स की बाइनरी वैल्यू लिखनी है। 4 की बाइनरी वैल्यू डायरेक्ट लिखो, 4, इसके प्लेस पर 1, बाकी प्लेस पर 0, दैट मीन्स 1 0 0। नेक्स्ट इज 7। अब 7 मेरा इन तीनों को प्लस करके आ रहा है, 4 + 2 + 1, तीनों के नीचे 1, दैट मीन्स 111। और 2 के लिए सिर्फ 2 की प्लेस के नीचे 1 लिखोगे, बाकी प्लेस पर 0, ठीक है। ये आपका रफ वर्क था, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। राइट, और 2 के लिए मेरे पास बनेगा 0 1 0। इन तीनों डिजिट्स की मैंने बाइनरी वैल्यू लिख दी। अब यही आपका आंसर है बच्चों। ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना था, बाइनरी में। इट्स वेरी सिंपल, 1 0 0 1 1 0 1 0 एंड विद बेस 2। सो दिस इज द आंसर ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्शन। नाउ सी नेक्स्ट 472, इसी को कन्वर्ट किया जो मैंने अभी सॉल्व किया है बच्चों। 472, 4 की बाइनरी वैल्यू, 7 की बाइनरी वैल्यू एंड देन 2 की बाइनरी वैल्यू। उसके बाद हम इसको कंबाइन कर देंगे तो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। एक और कन्वर्ट करते हैं, 5 4 3 1, 5 4 3 1, दिस इज इन ऑक्टल एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, राइट। अब प्यारा सा आपका जो 4 to 1 वाला रूल है वो यूज करना, ठीक है। 5 की बाइनरी वैल्यू बच्चों 1 0 1, ठीक है। डायरेक्ट लिख दें, आपको वैल्यूज आ गई हैं। तो 4 के लिए बच्चों 1 0 0, 3 के लिए 0 1 1 और 1 के लिए 0 0 1। बस यही हमारा क्या है फाइनल आंसर, 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1, राइट। अगेन अ वेरी इजी ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब अगर मेरे पास ऑक्टल नंबर किस में आ जाए बच्चों, डेसिमल, बिल्कुल आ सकता है। 3.1 रेज़्ड टू द पावर 8, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या करना है, 3 की बाइनरी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज 0 1 1। कौन से रूल से, 4 to 1 के रूल से। यहां पर आपका 4 to 1 रूल। 3 के लिए राइट, 2 और 1 प्लस करके 3 बनेगा, तो दैट मीन्स 2 और 1 के नीचे क्या लिख देंगे, 1 और बाकी प्लेस पर 0। तो 0 1 1 .001, 001 मीन्स इस 1 की बाइनरी वैल्यू। इन दोनों को कंबाइन करके हमारा एक सिंगल आंसर बन जाएगा, दैट मीन्स 0 1 1 .001, राइट। सो नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी टू ऑक्टल। अभी हमने क्या किया बच्चों, ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी वेरी सिंपल, आपको ऑक्टल डिजिट्स गिवन होंगी ऑक्टल नंबर की, और आपने डायरेक्ट उनकी क्या लिखनी है, बाइनरी वैल्यू। और बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी नंबर विल बी गिवन टू यू। अब पेयरिंग कितने बिट्स की करोगे, 3 बिट्स की। रीजन बीइंग दैट ऑक्टल कन्वर्जन के लिए कौन सा रूल यूज करते हैं, 4 2 1। कितने बिट्स हैं टोटल, 3। तो कितने बिट्स की पेयरिंग करोगे बच्चों, 3 बिट्स की। सो द बिट्स ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम, the bits of the binary number are grouped into group of 3 bits starting at the LSB. Then each group is converted to its octal equivalent. कितने की ग्रुपिंग करोगे बच्चों, 3 बिट्स की, स्टार्टिंग एट द LSB। अब ये दो टर्म्स होती है बच्चों, LSB MSB। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB मीन्स मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो LSB आपकी कौन सी होगी, जो बिल्कुल राइट मोस्ट साइड पर होगी। MSB मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जो आपके बिल्कुल लेफ्ट मोस्ट साइड पर होगी। तो अगर मैं इस एग्जांपल की बात करें बच्चों, हम जैसे ये हमारा आंसर आया था, लेट्स सपोज दिस वन। अब इसमें जो हमारे पास राइट मोस्ट साइड पर डिजिट है 1, दिस इज द LSB।
So I can write it here, LSB, which one? This one, right? And this one, which is at the leftmost side, this is your MSB, means most significant bit. तो अब आपने जो पेयरिंग स्टार्ट करनी है बाइनरी टू ऑक्टल फ्रॉम एल, स्टार्टिंग एट द एलएसबी मींस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट? और उसके बाद जो आपका ग्रुप बनेगा 3 बिट्स का, उसकी आपने इक्विवेलेंट ऑक्टल वैल्यू लिखनी है. एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों. अब ये नंबर गिवन है 100111010, ठीक है? ये नंबर गिवन है. कितने बिट्स की पेयरिंग करनी है? 3 बिट्स. बस अब वो आपका सिंपल सा और बहुत ही प्यारा सा रूल, क्या नाम है उसका आपका फेवरेट, 4 to 1, राइट? इस 4 to 1 के रूल से अब मुझे रिवर्स जाना है, दैट मीन्स 100. तो अगर 100 लिखा है बच्चे, दिस वन, सॉरी, लाइक, राइट? तो अगर 100 लिखा है, दैट मीन्स किसकी वैल्यू है ये? 4. इस तरीके से आपने लिखना है. 110 7 और 010 किसकी वैल्यू होगी? 2 की. इसको कंबाइन कर दो, ये आपका आंसर होगा, ठीक है? नाउ सी दिस नेक्स्ट नंबर 1 1 0 1 0 1 1 और 0. अब हमने इसकी पेयरिंग करनी है. कितने बिट्स की करें बच्चों? 3 बिट्स की. ये एक पेयर हो गया 3 बिट्स का. ये मेरे पास सेकेंड पेयर हो गया, ठीक है? अब देखो लास्ट वाले में मेरे पास 2 डिजिट्स हैं, तो कैन आई ऐड 0 हियर? बिल्कुल ऐड कर सकते हैं. मैथ्स में अगर मैं बात करूं 75 नंबर है, इसको आप 075 तो लिख सकते हो बच्चों, पर 750 नहीं लिख सकते, राइट? दैट मीन्स इस नंबर के पहले मैं 0 ऐड कर सकती हूँ. यहाँ पर आपने 0 नहीं ऐड करना है, लेफ्ट साइड पर 0 ऐड करना है. अब ये मेरे 3 बिट्स की पेयरिंग हो गई. अब क्या करना है? सिंपल, वेरी सिंपल रादर. विच रूल? योर फेवरेट और माई फेवरेट 4 to 1, राइट? अब जस्ट क्या करना है? 011 किसकी वैल्यू है बच्चों? ये 3. 010 2 and 110 6. So this is your final answer 326 in octal, right? Now next, अब ये मुझे किसमें गिवन है? पॉइंट्स में गिवन है. कोई दिक्कत नहीं, नंबर लिखते हैं 10110.0101. कितने कितने बिट्स की पेयरिंग करेंगे? 3 बिट्स की. पहले डेसिमल से पहले वाली करते हैं, राइट? अब ऐसे नहीं करना बच्चों, ये 3 ले लो, फिर यहां से ये 3 ले लो. नो, इस तरीके से नहीं होगा. डेसिमल के लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो, राइट? 1 2 3, ये 3 बिट्स की हो गई. इसके मैंने यहाँ पर एक 0 ऐड कर दी, ये भी 3 बिट्स की पेयरिंग हो गई. अब जो डेसिमल के बाद है, अगर मैं हम मैथ्स की ही टर्म में आपसे बात करें तो 75.20 तो आई कैन राइट, बट 75.02 तो आई कैन नॉट राइट ना, ठीक है? तो सिमिलरली जो हमारा डेसिमल के बाद वाला जो डिजिट्स हैं, यहाँ से पेयरिंग स्टार्ट करोगे. 3 डिजिट्स नहीं बन रही तो 0 हम बाद में ऐड करेंगे, राइट? इसको क्रैम नहीं करना है, कहाँ पर पहले करनी है कहाँ पर बाद में, तो उसको कंपेयर करो अपने मैथ्स से, ठीक है? आपको पता है 75.2 को 20 लिख सकते हैं, 02 नहीं लिख सकते हैं. तो दैट मीन्स डेसिमल के बाद हम बाद में 0 ऐड कर सकते हैं, डेसिमल से पहले हम पहले 0 ऐड करेंगे, राइट? अब आपका जो वो 4 to 1 का रूल है, लिख दो वैल्यूज 010, दैट मीन्स 2, 110 4026, दैट मीन्स 6.010 2 and 100 4. तो फाइनल आंसर विल बी 26.24, right? Now next is hexadecimal to binary conversion, ठीक है? Hexadecimal to binary. अब इससे पहले अभी हमने करा था octal to binary, if you remember, octal to binary बड़ा सिंपल था, सिंपल 4 to 1 का रूल यूज किया था. अब hexadecimal to binary के लिए 84 to 1 का यूज करेंगे, और पेयरिंग बच्चों कितने बिट की करेंगे? 4 बिट की, राइट? The conversion from hexadecimal to binary is performed by converting each hexadecimal digit to 4-bit binary equivalent. Now this is my 8421 rule. ये वाली वैल्यू सेम है बच्चों 0 to 7. अब 8 की अगर मुझे लिखनी हो बाइनरी वैल्यू, 8 लिख देंगे, मीन्स 8 के प्लेस पर 1, बाकी प्लेसेस पर 0. 9 के लिए बच्चों 8 + 1 9 होता है, तो 8 और 1 के नीचे 1,
बाकी प्लेसेस पर 0। इन सब का अगर मैं सम करूं 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 15 और 0 टू 15 टोटल कितनी हो गई बच्चों 16। तो इसलिए हम हेक्साडेसिमल में कौन सा रूल यूज करते हैं 8421। नाउ सी दिस हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन 9F2 राइट। अब 9 की बाइनरी वैल्यू कौन सा रूल यूज कर लेंगे हम 8421 राइट। इस 8421 के रूल को आपने काफी ज्यादा अच्छे से मींस इसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए राइट। नाउ आई एम राइटिंग इट हियर 8421। अब मुझे इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है बच्चों। 9 की बाइनरी वैल्यू 8 और 1 9 होता है तो दैट मींस 1001। अब F मींस 15। 15 के लिए बाइनरी वैल्यू 4 टाइम्स 1 एंड 2 0010। तो आपका ये हेक्साडेसिमल अब किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों बाइनरी में राइट। नाउ नेक्स्ट इसी को ही कन्वर्ट कर रखा है 9F2। 9 की वैल्यू 1001। F के लिए 4 टाइम्स 1 15 होता है एंड देन 2 के लिए 8421 के रूल से 0010। इन्हीं डिजिट्स को कंबाइन कर दो बच्चों, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। नाउ नेक्स्ट हम करते हैं 3A6 16 और इसको किस में कन्वर्ट करना है बच्चों डेसिमल राइट सॉरी बाइनरी में 3A and 6 base 16 and you have to convert it into binary। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं 8421। 3 के लिए बाइनरी वैल्यू बच्चों 0011। A मीन्स 10 तो 10 की बाइनरी वैल्यू 1010 एंड 6 के लिए बच्चों 0110 राइट। सो दिस इज माय फाइनल आंसर। इट्स सो सिंपल ना। चलो अब पॉइंट्स में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट्स में भी कर देंगे 3BF.5C राइट। अब आपने इन सभी की बाइनरी वैल्यूज लिखनी है कौन से रूल से 8421। 3 की बाइनरी वैल्यू 0011 B दैट मीन्स 11 तो 11 के लिए 1011 फिर F के लिए 4 टाइम्स 1 पॉइंट एज इट इज आएगा 5 एंड देन C मीन्स 12। सबको कंबाइन कर दो, बेस ऐड कर दो, दैट विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको ऐसे नहीं छोड़ना विदाउट बेस, ये सिर्फ बाइनरी वैल्यूज शो कर रखी है। जो फाइनल आंसर आप लिखोगे दैट विल बी इन दिस फॉर्म और बेस जरूर लिखना बच्चों जिसमें आपने उसको कन्वर्ट करना है राइट। नाउ नेक्स्ट इज बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बाइनरी टू ऑक्टल में हमने क्या किया था पेयरिंग ग्रुप ऑफ 3 बिट्स। अब बाइनरी टू हेक्साडेसिमल है तो कितने की पेयरिंग होगी बच्चों 4 बिट्स राइट। अब देखो यहाँ पर नंबर लिखा मैंने, पेयरिंग करोगे 4 बिट्स की। अब अगर डिजिट्स कम पड़ जाए पेयरिंग के लिए तो लेफ्ट मोस्ट साइड पर हमने उतने डिजिट्स ऐड कर देंगे। 4 बिट्स की पेयरिंग करेंगे और यहाँ पे हम अपना आंसर लिख देंगे। ठीक है, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 11 12 13 14 15 आ सकता है बिल्कुल 8421 के रूल से। तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय A to F। अब जैसे 1011 अगर मैं 8421 का रूल लिखूं तो 1011 विल बी 11। तो 11 को हमने किससे रिप्लेस कर दिया बच्चों B से एंड 1010 10 की वैल्यू है तो दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय A राइट। चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट इज 11010110। इसकी पेयरिंग करेंगे बच्चों 4 बिट्स की। ये मेरे 4 ही हैं ठीक है। 8421 रूल आई एम राइटिंग इट हियर 1101 दैट मीन्स 8 और 4 12 और 1 13 13 विल बी D and then 0110 that means 6। So this is your final answer D6 और with base 16। एक और करते हैं। अभी आपका किसकी फॉर्म में गिवन है बच्चों डेसिमल की फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन लिखते हैं हम 1010 10010.010 राइट। क्वेश्चन करेक्ट लिखा है आई थिंक 1010.010 ठीक है। अब पेयरिंग स्टार्ट करो। ये 4 बिट्स की, ये मेरे 4 बिट्स हो गए। राइट साइड पर ये 4 बिट्स आगे नहीं है नो प्रॉब्लम, ये 2 0 ऐड कर दो ठीक है। अब यहाँ पर हम अपना लिख लेंगे 8421 रूल 1010 दैट मीन्स 10 10 के लिए आई हैव टू राइट A 1110 दैट मीन्स
8 और 4 12, 13 14 मीन्स E, ये पॉइंट आपका एज इट इज 0 1 0 1 दैट मीन्स 5 एंड देन 1 1 0 0 12 दैट मीन्स C। बस सो सिंपल। ये आपका जो बाइनरी नंबर था अब किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, ये हेक्साडेसिमल, राइट। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कन्वर्जन इज ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, ठीक है। अब देयर इज नो डायरेक्ट मेथड अवेलेबल फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इफ आई एम कन्वर्टिंग माय ऑक्टल नंबर टू हेक्साडेसिमल, तो क्या करोगे बच्चों, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करोगे। ऑक्टल टू बाइनरी अभी हमने किया, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी किया, तो वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फ्रॉम ऑक्टल टू डेसिमल, ठीक है। अब करो जरा इसको एक बार, 665 ऑक्टल नंबर गिवन है, किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। ऑक्टल टू किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले बाइनरी में। ऑक्टल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 665 इसकी बाइनरी वैल्यूज लिख दो। 665 की बाइनरी वैल्यूज 110 110 एंड 5 के लिए 101। अब ये मेरे पास कौन सा नंबर आ गया बच्चों, बाइनरी। अब इस बाइनरी को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। ये जो 3 बिट्स के पेयरिंग करके आप लोगों ने नंबर आया यहाँ पर, इसको कंबाइन कर दो, ये हमारा बाइनरी नंबर आया है। अब मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। नाउ आई हैव टू डू द पेयरिंग ऑफ 4 बिट्स, तो इसमें हम 4 बिट्स की पेयरिंग कर देंगे और फिर हम अपने उसकी वैल्यूज लिख देंगे, राइट। सो ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल के लिए फर्स्ट यू हैव टू कन्वर्ट ऑक्टल नंबर टू बाइनरी एंड देन बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। एंड फॉर हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करोगे एंड देन बाइनरी टू ऑक्टल, राइट। नाउ सी दिस एग्जांपल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। अब हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है B2F एंड बेस 16। यहाँ पर आप 8421 के रूल से इसकी वैल्यूज लिखोगे बच्चों। B की वैल्यू 11, 11 के लिए 1011, 2 की लिखेंगे, F के लिखेंगे। अब ये हेक्साडेसिमल से किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। अब बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए इस नंबर को क्लब करके पेयरिंग कितने बिट्स की करेंगे बच्चों, 3 बिट्स की, राइट। इस नंबर को पहले कंबाइन कर देना और फिर पेयरिंग 3 बिट्स की स्टार्ट करना, मींस दिस, ये 3 बिट्स हो गए 111, ये मैंने यहाँ लिख दिया। नेक्स्ट है बच्चों 101, ये यहाँ लिख दिया। इस तरीके से आपने इसकी पेयरिंग करनी है बच्चों 3 बिट्स की, और फिर वो आपका बाइनरी से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेरा ऑक्टल, राइट। तो आंसर विल बी 5457। सो विद दिस कन्वर्जन, जितने भी कन्वर्जन सिस्टम्स है दैट वी हैव डन, लेट्स क्विकली रिवाइज कि हमने किस कन्वर्जन सिस्टम में कौन सा मेथड किया था। द वेरी फर्स्ट जो वी हैव स्टार्टेड इज डेसिमल, हमें लेफ्ट साइड पर गिवन था बच्चों। डेसिमल को हमने किस में कन्वर्ट करा, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। व्हिच मेथड वी हैव यूज्ड, एलसीएम मेथड। और एलसीएम जब आप लोगे दैट विल बी विद बेस, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है आइदर 2, 8 और 16, राइट। नेक्स्ट कन्वर्जन सिस्टम वी हैव स्टडीड जब मेरा डेसिमल नंबर सिस्टम राइट साइड पर है, दैट मीन्स बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल। इसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके लिए हमने विच मेथड वी हैव यूज्ड, मल्टीप्लिकेशन बाय पावर मेथड। मल्टीप्लिकेशन बाय पावर, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन बाय पावर क्या था कि जो भी नंबर्स गिवन है इसको मल्टीप्लाई करना है इंक्रीजिंग पावर्स ऑफ बेस, मींस 2 raised to power 0, 2 raised to power 1, वो वाला मेथड, ध्यान है ना, राइट। नेक्स्ट हमने कौन सा किया बच्चों, बाइनरी। अगर मुझे बाइनरी में नंबर गिवन है और इसमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल, राइट, तो आपकी 3 बिट्स की पेयरिंग होगी। और फॉर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल पेयरिंग करोगे बच्चों 4 बिट्स की, राइट। या हमने 3 बिट्स जो 4 बिट्स लिखा दैट इज फॉर पेयरिंग। और अगर आपको हेक्साडेसिमल में गिवन है, बाइनरी में करना है, वो डायरेक्ट 8421 का रूल लगाओगे। एंड इफ इट इज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू बाइनरी, तो देन विच रूल यू विल यूज, 4 to 1 रूल। और नेक्स्ट लास्ट हमने पढ़ा बच्चों हेक्साडेसिमल
को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में, और ऑक्टल को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, हेक्साडेसिमल को बाइनरी में करोगे, बाइनरी से ऑक्टल, राइट, एंड फॉर ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ऑक्टल से कन्वर्ट करोगे बाइनरी, एंड बाइनरी से देन हेक्साडेसिमल। ठीक है, ये समराइज हो गया सारा एक पेज पर। आई होप आपके जितने भी कंसेप्ट्स हैं दैट आर क्रिस्टल क्लियर नाउ। Still, if you are having any doubt, you can write it in the comment section. If you like my video, do press the like button and share your views in the comment section. In our next video, we will discuss the binary addition. And don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the updates of my upcoming videos. Till then, keep watching, keep studying.